Now I'll start trends in modern periodic table. Trends means what we have to check in modern periodic table. First, valence electron, then valency, third atomic size, or you can say that atomic radius, fourth metallic character or non-metallic character, fifth chemical reactivity, and sixth nature of oxide. These six things we have to check in modern periodic table. So let's start with valence electron. First we will check in periods and then we will check in groups. First I will write the name. Just take the third period for understanding. Take the third period: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. So here 11, right here 11, atomic number is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So this is the third period. So now we will check that the trends in the period. What are the trends? Means table. What are the trends? Follow the table. So first trend is valence electron. What is the valence electron of sodium? Right here 281, here 282, here 283, 284, 285, here 286, here 287 and here 28 and 8. So valence electron means number of electrons present in the outermost orbit. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So trends indicate that in period, when we will go in any period out of 7 period, when you will travel or when you will go or when you will start from left to right, when you will start moving in modern periodic table from left to right, it's mean that you are following the periods. So when we will move from left to right, valence electron will increase. Here is the proof. You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 means valence electrons are increasing. Similarly, then let's check the valency. What will be the valency? 1, 2, 3, 4 and then 3, 2, 1, 0. So what about valency? What you will say here? Increases or decreases? So we will say first increases then decreases. Means in metal valency will increase and in non-metal valency will decrease. So it's a very easy for you. I will send you in notes as well. So in valence electron, what we will say? Just suppose question will come like that. If we will start moving from left to right in a period, what will be the effect on valence electron, or valence electron will increase or decrease? So just practically you can say here कि valence electron will increase and valency first increases then decreases. Now third property. What is the third property? That is the atomic size. Atomic size means size of atom. We will see that size of, suppose here is the size of atom. Size of any atom depends on the size of their radius. So they can ask you atomic size as well as atomic radius. So here atomic size,
means atomic size will increase or decrease. I know that you will say that 11, 12, 13, 14 means atomic numbers are increasing, so atomic size will be increased. No. Now let's see. For sodium, just draw the atom of sodium. It is the nucleus. Here 2 electron, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. After that there will be 2 electron. Let's take another one, magnesium or helium. Let's take aluminum. Here 2, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and after that 1, 2, sorry, sodium only 1 electron present in outermost, sorry, and here 3. What about the size? Just one more thing, note it down. In periods, means when you will start moving from left to right, there will not be any change in the orbit or shell. Means if you are following the first period, there will be 1 orbit or 1 cell. In second period there will be 2 cell. In third period there will be 3 cell. You can see here we are following the third periods. Just open textbook पेज नंबर 86. साथ में आप टेबल देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. ये हमने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लिया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 2, 3 वॉट एवर. सो देयर आर 3 ऑर्बिट्स आर यूज्ड हियर. सो जिस भी पीरियड में आप जाओगे उतना ही ऑर्बिट यूज होगा, इतना माइंड में आपको रखना है. अगर हम 5th पीरियड्स में जाएंगे तो 5 ऑर्बिट्स यूज होगा. मीन्स 5 cells will be used. 5 cells will be used here. So in periods 3 all elements contain 3 cells. So अगर सबने 3 cells लिया है तो सबकी साइज सेम होगी? No. So what we know that protons are present in the nucleus of atom. In the any elements in the 9th standard we have studied that in the any element protons present in the nucleus and electron revolve around the nucleus. Okay, so here in the sodium 11 electrons and 11 protons are present. So suppose आप आ जाओ एल्युमिनियम पे. Now 13 electron and 13 protons. Protons have positive charge and electrons have negative charge. It's mean that they will attract to each other. Simple thing, just note it down. If the number of electrons and protons are increases, their force of attraction will also increases. Why? Protons and electrons are increasing. So if protons and electrons will start increasing, then the force exerted from the nucleus, means force exerted from the protons will attract the electrons. means जैसे जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा प्रोटॉन से ज़्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो अट्रैक्ट होगा. अब अगर अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, उसकी साइज छोटी होती जाएगी. तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज एंड वाई. तो आपको क्या कहना है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. वाई? बिकॉज व्हेन वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज. इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मीन्स इंक्रीज इन प्रोटॉन्स, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज नोन एज प्रोटॉन. So increase in atomic number. So if atomic number is increases, means number of proton will also increase. So if protons and electrons are increases, force of attraction between protons and electrons will also increases. Means increase in protons, so there will be more force from the nucleus to the electrons. So when force will increases, so size of atom will be डिक्रीज. मतलब आप समझो यहाँ पे कि 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है. अब उसके बाद 15 इलेक्ट्रॉन हो गए और 15 प्रोटॉन्स हो गए, तो अब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. और आपने पहले ही बोल दिया सेल सेम रहेंगे. अगर सब में सेम सेल है तो सबका साइज सेम हो गया.
बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज थोड़ा डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे बढ़ेंगे साइज डिक्रीज होते जाएगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी के मेटालिक कैरेक्टर्स एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। हाउ कैन वी डिसाइड द मेटालिक कैरेक्टर? मेटल क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। मेटल्स जनरली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक चीज आप मुझे बताओ, ये सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और एल्यूमिनियम के कितने हैं? 3। तो सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है? 1। और एल्यूमिनियम को कितना डोनेट करना है? 3। तो किसके लिए इजी रहेगा डोनेट करना? सोडियम के लिए या एल्यूमिनियम के लिए? आई नो दैट कि आपको पता है कि सोडियम के लिए, बिकॉज डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज इजी देन द 3 और 4। सो सोडियम इजीली मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और सोडियम इजीली डोनेट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सोडियम विल बी मोर देन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम, बिकॉज only 1 electron present in the outermost orbit of the sodium and there are 3 and in magnesium 2. So जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे बढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। मीन्स इट्स अ डिफ़िकल्ट टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस नहीं, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लॉस करना, उसी के बेसिस पे मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होता है। तो अगर ईजिली लॉस नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्टीज़ उसका डिक्रीज होगा। पर मेटल के लिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम। फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर को 2 चाहिए और क्लोरीन को 1 चाहिए। तो आप बताओ 3 लेना इजी। अब इनका काम जो हमने डोनेट पे बात किया वही इनका हम एक्सेप्ट पे बात करेंगे। इसको 3 एक्सेप्ट करना, इसको 2, इसको 1। वो सबसे इजी कौन सा एक्सेप्ट करना? 1। इसके लिए थोड़ा मुश्किल एक्सेप्ट करना, इसके लिए थोड़ा उससे ईजी है, इससे सबसे ईजी है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मीन्स मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। एंड फिफ्थ वन जो आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्टिविटी, वो भी सेम इस पे ही फॉलो करता है। अब सोडियम को 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो जल्दी रिएक्ट करेगा, जिसको 3 डोनेट करना है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो सेम ट्रेंड्स में वही फॉलो होगा जो मेटालिक कैरेक्टर में है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो केमिकल रिएक्टिविटी metallic character is decreasing here, so chemical reactivity will also decrease. Non-metallic character is increases, so non-metallic chemical reactivity will also increase. Now last one is oxides. आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? नहीं पता है तो नोट करो। मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, मतलब बेस फॉर्म करते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। ये सब आपको अच्छे समझाया जाएगा लेसन नंबर 3 में, मेटल एंड नॉन मेटल में। सो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर होता है ये बेसिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का होता है एसिडिक। अब मेटालिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज हो रहा है तो केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। सो इसका जो मेटालिक बेस फॉर्म होगा, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी जो इसका आएगा, बेसिक ऑक्साइड्स जो इसका आएगा, सो ऑक्साइड्स भी इसका जो है डिक्रीज होगा। और नॉन मेटालिक जो एसिडिक प्रॉपर्टी फॉर्म हो रहा है, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो इंक्रीज होगा। सो ऑक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा। अब हमने बात किया पीरियड्स की, अब हम बात करेंगे ग्रुप्स में क्या ट्रेंड होगा। चलो अब यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं कोई भी। चलो ग्रुप नंबर हम ले लेते हैं, पहला ही ग्रुप ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन Rb, CS एंड Fr। ये आपका ग्रुप 1 है।
अब हम देखेंगे ग्रुप के, हम जस्ट वन मोर थिंग, नोट इट डाउन. Chemical properties of all elements present in the same groups are same. Chemical properties will be same. Now trends, first one is valence electron. अगर हम नीचे जाएंगे, मतलब डाउनवर्ड्स में जाएंगे, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या असर आएगा. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में, इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट में 1, इसका 2:1, इसका 281, इसका 2881. तो आपको क्या दिख रहा है इन ग्रुप. साथ में पीरियड्स की भी बात करते हैं, पीरियड्स में रिवीजन हो जाएगा आपका. पीरियड में क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा. पीरियड में एक चीज़ और बात हुई थी, नंबर ऑफ सेल अगर थर्ड पीरियड तो 13 ही रहेगा. ग्रुप में एक खास चीज़ आपका है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप. इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 मीन दैट यू आर इन ग्रुप 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 मीन्स ग्रुप 3. 3 नहीं 13, बिकॉज आफ्टर 2 डायरेक्टली वी हैव टू मूव ऑन 13. जस्ट नोट इट डाउन बेटा. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14, 5 15, 6 16, 7 17, 0 18 means 8 elements means outermost orbits are completed, then 18th group. Okay, so valence electron you can see here same, means no change in valence electron. Next one is valency. outermost orbit has only 1 electron, तो वैलेंसी भी सबका 1 होगा. अगर हम सेकेंड ग्रुप लेते तो सबका वैलेंसी भी 2 होता. So there is no change in valence electron as well as valency. Now what about the atomic size? Here only 1 electron, here 3 electrons, so 2 and here 1, here 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1. क्या दिख रहा है आपको? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल. मीन्स जब आप डाउनवर्ड्स में जाओगे नंबर ऑफ सेल्स है उसके बढ़ते जाएंगे. जब सेल्स बढ़ते जाएंगे तो भले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, जब एक सेल ही एक्स्ट्रा आ गया तो उसकी साइज इंक्रीज होगी. तो पीरियड्स में क्या था, साइज डिक्रीज होगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एंड इन ग्रुप number of cells are increasing continuously one by one, so size will increase. अब हम बात करते हैं मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स की. ये ग्रुप 1 लिया है तो याद रखना ग्रुप 1 में सिर्फ मेटल ही आएंगे. जब हम मेटल की बात करेंगे इसका तुरंत उल्टा बोल देना, नॉन मेटल वाला कोई ग्रुप अगर लेंगे तो. मेटल का मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, अब इसका देखो, ये तो मेटल है ही नहीं, यहाँ से बात करो. इसका क्या है, इसके में एक ही 2 ऑर्बिट है. सोडियम में कितना आएगा ऑर्बिट, 1 2 3 आएगा. पोटेशियम में 1 2 3 एंड 4 आएगा. मतलब इधर एक रहेगा, इसके में इधर एक है, सबके में एक एक आउटर मोस्ट में है. सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करना है. तो क्या मेटालिक कैरेक्टर सेम हो जाएगा? नो. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जर्ट होगा वो प्रोटॉन यहाँ से रहता है. मान लो इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना क्लोज होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सेल्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज होगा. तो जब डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन ईजिली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. जब ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो डोनेट करना ईजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है. अंडरस्टूड बेटा? सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली व्हेन यू आर गोइंग इन द ग्रुप्स, इट्स मीन दैट मेटालिक कैरेक्टर विल आल्सो इंक्रीज. व्हाई इंक्रीज? क्वेश्चन इस सब में तो एक एक ही है तो सबका इक्वल होना चाहिए. नो, साइज ऑफ एटम्स आर इंक्रीजिंग, सो डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग. And if the distance is increasing then attraction will decrease, you know that. So metallic character क्या होगा, increase होगा, और non metallic character क्या होगा, decrease होगा. क्यों? जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे दूर हो जाएगा तो उसको अट्रैक्ट एक्सेप्ट करना भी इजी नहीं होगा.
ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा. एंड व्हाट अबाउट द ऑक्साइड्स? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स विल बी सेम, देयर इज नो चेंज इन द ग्रुप्स. ग्रुप में ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो सेम होता है. आप एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरा अच्छे से देखो. अगर कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन है इन्फॉर्म कर